Good evening, everyone. So, as I suggested at the beginning of the week, so this weekend I will come up with two Nifty 50 stocks, and I had a voting on in one of my social media platforms, and I received maximum votes for Reliance Industries Limited, and second position was ITC. So, the first stock that I will cover is Reliance Industries Limited. Now, one thing I would like to mention over here that 70 to 75% of my subscribers are, pretty new to stock market. They haven't yet started investing, and forget about trading to baad mein aata hai. They haven't yet started investing, or they are still looking to open demat accounts. So of course it is always advisable for those of my subscribers who are new in this game. They should always look for long term investment. So uh, of course in this particular session I will cover the charts, weekly and monthly charts, but for those subscribers, for my majority of subscribers who don't understand too much of the charts and all, and they should and they are still focusing on starting to open a demat account and start long term investing. So I would just tell them to view the thumbnail of my video, and this screen that you can see over here, I believe you people can see my screen. Yes. Right. So this is the return that stock like Reliance Industries has generated over the year and over the decades. Okay. So this will be highly inspirational for many people like who have always, sort of seen people around you investing in traditional investments and getting 8.5%, 9% per year. So this is the kind of return that we can generate from blue chip stocks of India. Okay, so we are talking about Indian stock market, and this is the biggest stock of the Indian stock market, which is listed in the public space. And you can see these returns, right? So this is the thumbnail of my video. People who don't know too much of technicals, forget about technicals and all. Just focus on long-term investing. Just start investing small quantities in Reliance Industries. However much you can save. 2005 or 482 is the current market price. So every month, if you can buy one stock, or every quarter, if you can buy one stock, start with as much possible amount which is convenient for you, and slowly and slowly build up a corpus, because this is the kind of return. Okay, 1977 investment in IPO, if you had invested 10,000 rupees, see how many zeros are there. I am also struggling to count. 1 2 3 4 5 6. Okay, so this is the valuation in INR. ठीक है, तो ये 10,000 रुपया कितना हो गया देखो, यहाँ पे अभी 1 लाख हो रहा है, 25 करोड़ के आसपास हो गया है, राइट. रिटर्न परसेंटेज टाइम पीरियड वाइज एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, तो अभी मैं डिविडेंड कंसिडर नहीं किया. ठीक है, सो 2004 से इट हैज गिवन मी 2700%, सो 27 टाइम्स हो गया है 2004 से. तो 20 साल में 27 गुना. ठीक है, लास्ट 10 साल में 5.75 टाइम्स, तो लास्ट 10 साल में 6 गुना, लास्ट 5 साल में 158%. ठीक है, लाइक 1.6 टाइम्स. So these are the kind of returns, and we are talking about the biggest stock. And let me show you. So you can see in the you will be seeing in the thumbnail. So this is the largest stock of India by market capitalization. Okay, the market capitalization rank is 1. ठीक है. So the market capitalization will be there in the thumbnail. You can see at this moment it's just sort of. So my advice to all of you, who are starting to enter the stock market, that forget about technicals and all, which I will, of course, start of discussing after a few minutes. For the remaining 25 to 30% of my subscribers who are interested in technicals, who do swing trading, who do intraday trading, they will like this, and you people also can view the remaining part of this session for your information perspective, as well as for knowledge perspective. But even if you don't understand, just by seeing this thing, you can of course verify. These are all taken from trusted sources. You can verify this. I have struggled a bit to find out the dividends. It's not so easy, because this kind of information, it is not so easily available.
we have to calculate a lot. Okay, so these figures also, there were a few calculations which I had to make okay, from different websites. So if I consider the dividends, then these returns will be even much larger. Okay. So now we will slowly get into the charts. Okay. So So this is primarily from for my remaining 20-25% of subscribers who are very much interested in daily trading, swing trading, and who know technical analysis and all, right? So when we are seeing the long-term charts of any stock, so usually every day we see short-term time periods, right? Like 6 months, 9 months. But आज हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो हम लोग ऑल डेटा का ही देख लेते हैं. ठीक है. तो अभी देखो, मैं यहाँ पे चैट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स लिखा है. सो 2180 जो है ये रिलायंस का 52 वीक लो है. 2855 जो है वो ऑल टाइम हाई है. ठीक है. तो ये 2855, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैं ट्रेंड लाइन बना, तो व्हेन वी सॉर्ट ऑफ डिसाइड ऑन द लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ द स्टॉक्स टेक्निकली, तो कुछ टूल्स है. एक तो होता है ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन. तो मैं देखो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये 2008 में मार्केट जब क्रैश हुआ था उसके पहले जो हाई था, और ये जो 2855 वाला जो हाई है, मैं वो दोनों को ज्वाइन करके मेरे को इधर दिखा रहा है. मैं वो ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो 3000 तक जाता है. ठीक है. तो ये 3000 जो है मोटा मोटी लॉजिकली साइकोलॉजिकली एक टारगेट बनता है रिलायंस का टेक्निकल. ठीक है. अभी देखो फंडामेंटल एनालिस्ट लोग फंडामेंटल्स देख के टारगेट देगा देखा, बट मैं आई एम नॉट अ फंडामेंटल एनालिस्ट. मैं जो भी करता हूँ मेरा चैनल में टेक्निकल्स देख के करता हूँ. ठीक है. तो ये 3000 के आसपास एक टारगेट बनता है. मैं अगर 2008 का जो हाई है, जहां से क्रैश किया था रिसेशन का, वहां से मैं अगर पूरा का पूरा मैं 2855 का जो ऑल टाइम हाई है रिलायंस का, वो मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इसका 3000 तक एक टारगेट बनता है. देखिए ये 3000 का एक टारगेट बनता है. और मैं नीचे की तरह, नीचे में ये कोरोना का जो लो था, वहां से मैं ये 2180 जो मैं बोल रहा हूँ, ये 2180 का जो ये 52 वीक लो है, इसका मैं अगर एक्सटेंशन करता हूँ तो मेरे को ये जो है आपका, सो दिस पर्टिकुलर लेवल इज समथिंग अराउंड 2355. ठीक है. ये 2355 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाएगा. तो सॉर्ट ऑफ वी कैन से 3000 टू 2355 ये एक ब्रॉड रेंज बनेगा रिलायंस का. ब्रॉड रेंज एक रिलायंस का बनेगा ये 2350. ठीक है. और ये नीचे का 2180 जो कि इसका ये वाला लो था. ठीक है. 52 वीक लो. तो अभी देखो ये 52 वीक लो जिस जगह में ये किया था, ये जो जगह है, आप देखो ये वाला जो जगह है ना, तो ये रेक्टेंगल की इधर इसका काफी कंसोलिडेशन हुआ था. तो ये यहाँ से ही जाके ये बाउंस कर गया. ठीक है. तो ये जो रेक्टेंगल है, ये एक जगह है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट है. तो वी आर सीइंग लॉन्ग टर्म चार्ट्स, राइट. वी आर सीइंग ऑल डेटा. सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, वी आर सीइंग ऑल डेटा एंड मंथली, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग बेसिकली, ऑल डेटा एंड मंथली. ठीक है. मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. तो ये ऑल डेटा पूरा ये मंथली चार्ट है रिलायंस का. आरएसआई देखो 54.74. ठीक है. ये फ्लैटिश है, मतलब 60 के नीचे है. ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है लेकिन बियरिश भी नहीं है. 50 to 60 बुलिश पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, बट साइडवेज टू बुलिश. सो व्हाट आई विल राइट ओवर हियर इज ट्रेंड इज साइडवेज टू बुलिश. ठीक है. साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है ओवरऑल रिलायंस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड. ठीक है. सो इफ इट वाज बिलो 50, मैं थोड़ा बोलता साइडवेज टू बियरिश. ठीक है. आरएसआई लॉन्ग टर्म मंथली आरएसआई. तो मंथली आरएसआई ग्रेटर देन 50 लेस देन 60 अगर होता है तो साइडवेज टू बुलिश. मंथली आरएसआई
less than 50, greater than 40, sideways to bearish. ठीक है, तो ये 54 है, तो विच मीन्स ये बुलिश कैटेगरी के साइडवेज बुलिश कैटेगरी में भेजेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो ऊपर में कितना टारगेट 3000, तो अभी कितना प्राइस है 2480, राइट। सो 2500 पकड़ लो, 500 पॉइंट, मतलब 20% अपसाइड पॉसिबल है। और डाउन साइड में 2180, मतलब 320 पॉइंट, 320 डिवाइडेड बाई मैं अगर 2500 करता हूँ तो ये लगभग 25 7 13% डाउन साइड। ठीक है, तो ये 20% अपसाइड, 13% डाउन साइड, इन समवेयर अभी ये दोनों लेवल का बीच में सैंडविच होकर पड़ा है। ठीक है, तो ये लग रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी वीकली देख लेते हैं, तो वीकली का मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 8 साल का कर देता हूँ वीकली। तो वीकली में एक चीज अभी देखिए, ये 2480 जो है ना, वीकली में ये बॉलिंजर बैंड का, ये जो देखिए यहाँ पे, ये बॉलिंजर बैंड का ऊपर लेवल का, ऊपर लेवल में है ये, मतलब ये लेवल तो रेजिस्टेंस तो है ये जगह में। ठीक है, काफी आप अगर देखोगे यहाँ पे 2538, सो सी दिस इज इंपॉर्टेंट, बॉलिंजर 20, बॉलिंजर 22 538। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड दिस थिंग, दिस एंटायर थिंग, ये एक रेजिस्टेंस जोन है 2600 से लेके 2855। ठीक है, ये जो पूरा पूरा जोन है, मतलब ऑल टाइम है। तो यहाँ से काफी बार इसने, देखो कितने बार यहाँ पे करेक्शन किया है ये जोन से, एक बार ये हो गया, ये हो गया एक बार। ठीक है, अभी दूसरा देखो, ये हो गया यहाँ पे डबल टॉप बना के, ये दूसरा करेक्शन, अभी तीसरा करेक्शन यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जाके अभी साइडवेज चला गया। तो ये 3 बार, 3 बार ये लेवल से, 1 2 3 बार ये लेवल से करेक्शन हुआ है। वीकली का देखते हैं 54, चलो ये भी 54 है, तो मंथली और वीकली पूरा भाई भाई है एकदम, 50 RSI वीकली। सो अगेन इट इज साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, तो ये जो है ना, अभी रिलायंस जो है ये मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए काफी, मतलब बहुत टाइम दे रहे हैं इन्वेस्टर लोगों को पैसा डालने में। तो अगेन फॉर माय न्यू फ्रेंड्स हु आर ट्राइंग टू ओपन डीमैट अकाउंट, ठीक है, एंड सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। ठीक है, तो यू पीपल ओपन योर डीमैट अकाउंट, ऑफ कोर्स आई विल एडवाइज एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल स्मॉल ट्रांचेस इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिकॉज इसका अपसाइड है काफी। तो हम लोग तो टेक्निकली बोल रहे हैं 3000। ठीक है, तो अभी लॉन्ग टर्म में तो आपका रिजल्ट जितना अच्छा होता रहेगा फंडामेंटली, वो तो 4 4.5 भी जा सकता है आप बाद में, तो उतना आगे तक तो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, हम लोग थोड़ा फिबोनाची लेवल्स में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी, तो ये जो चीज, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये जो लेवल है यहाँ पे, जो कि 900 रुपए में आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2800 से अभी वो 2100 में गिरा था, राइट। तो we have talked a lot about Fibonacci retracements in our videos, right। हम लोग फिबोनाची, तो फिबोनाची का एक्सटेंशन बोल के भी कुछ चीज होता है। ठीक है, तो फिबोनाची का एक्सटेंशन क्या है, हम लोग जब लॉन्ग टर्म कोई चार्ट का टारगेट वारगेट डिसाइड करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन और फिबोनाची एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखो 2855, मैं इधर लिखा है 2855, ये ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो 2855 माइनस 2180, ठीक है, ये कितना हो गया, मोटा मोटी हो गया 700 670 पॉइंट, राइट। सिक्स 2780, हाँ, 80 मोटा मोटी आपका 670 पॉइंट्स आता है, तो 700 में राउंड फिगर ले लेता हूँ। अभी देखो ये 700 पॉइंट्स का जो इसने ये किया है, अभी ये 700 पॉइंट्स का जो करेक्शन किया था, ये अब इसका फिबोनाची एक्सटेंशन, सो वी हैव नोन अबाउट 23.6%, 38.2%, 50%, राइट, 61.8%। तो फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे होता है, 123.6%, 138.2%।
161.8%। ठीक है, तो अभी ये सब कैलकुलेट करके हम लोगों को ये जो 670 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ था, इसको मैं अगर 123.6% करता हूँ तो मेरा क्या आता है? लेट मी कैलकुलेट इन माई मोबाइल। So these are all possible levels. Okay, so these are all possible levels. So 670 को मैं अगर 1.236 से मल्टीप्लाई करते हो 828 प्लस आपका 21.8, तो 3008, 3008 आपका बनता है 23.6% एक्सटेंशन। ठीक है, नाउ 38.2 करेंगे अभी हम लोग। 670 into 38.2, which is 926 points, right? 926 points, 926 को अभी हम लोग ऐड करेंगे किससे? 2180, तो 3106। ओके, सो ये हो गया 38.2% रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 50%। तो 50% हो गया 670 का 50%, और 670 इंटू 1.5, 1005 पॉइंट्स प्लस आपका 2180, विच इज 3185। ये हो गया 150%। ठीक है, अभी उसके बाद करेंगे 161.8%, राइट? 670 into 1.618 plus 2180, 3264, 61.8% extension. ठीक है, so these are possible Fibonacci extension targets. ओके, सो टेक्निकली देखो, फंडामेंटल एनालिस्ट लोग प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग विजिबिलिटी, वो सब देख के टारगेट डिटरमाइन करता है, लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट लोग कैसे टारगेट डिटरमाइन करेगा? ऐसे ही देयर आर सर्टेन टूल्स लाइक दिस। वन इज द ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन दैट आई टोल्ड अबाउट, and then there is this Fibonacci extension levels. Okay, so these are potential, target determining tools or techniques that you can say. So far in our daily videos we have already talked about retracements, right? तो निफ्टी का कितना टारगेट हो सकता है लॉन्ग टर्म का, वो हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया हमारा वीडियोस में। लेकिन आज हम लोग क्योंकि स्टॉक्स का विजिबिलिटी देख रहे हैं और बाद में किधर जा सकता है, इन्वेस्टमेंट करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज मेनी पीपल डू इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो, राइट? तो उन लोगों के लिए ये सब फिगर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करूंगा। And also, as I said, I mean, my thumbnail is especially designed for the majority of my subscribers, who must consider investing in Reliance in tranches in systematic investment mode. Okay, so बहुत लोगों को डर रहता है कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या है। आई थिंक once again I would like to show them this. Okay, just look at this. ठीक है, इसको देखो और बिंदास होके इन्वेस्टमेंट करो। So this is that's all from my side on Reliance Industries. I hope you people like this analysis. Thank you for joining. And immediately after this, I am publishing the ITC video, which is another blue chip darling stock. Many retail investors have that stock in their portfolio, and many people who are new to the stock market. Personally, when I started investing in stock market, my first share was also ITC. I will publish ITC video right after this. Okay. Thanks a lot. Thanks for watching, and please stay tuned to watch ITC analysis.